Ekta Parveen, a student of 9th standard, standing over here to deliver a speech on education. Education is not preparation for life. Education is life itself. Education is not about going to school and getting a degree. It's about expanding your knowledge and absorbing the truth about life. Education is a movement from darkness to light, and our teacher, Manohar Zaman sir, is trying his best to bring all of us from darkness to light through his mesmerizing, life-changing motivational talks. I bring my talk asking you all a question that who are better in education, boys or girls? कौन है ज़्यादा better? सबसे better कौन है, लड़का या लड़की education में? Which is an interesting debate. And people often respond to this question considering their gender, which is not truly appreciative. Well, as a student of JP English Medium School, I stand here at this stage to address this very difficult but interesting topic. And don't be under the wrong impression that I am a girl, so I am going to favor the girls in this debate. I promise I will speak the truth, and this is what I have learned at JP English Medium School, that under any circumstances we shall not lie. Well, before diving into this discussion, I begin my talk asking you all a quick question that, and I hope you all will respond it. Well, if I put a 20-year-old male boxer and a 20-year-old female boxer in a ring and make them fight, offering them 1 million prize money upon winning them, who knows down whom I am pretty sure? Obviously, you all would say that the boy is powerful than girls. Then, so boys will knock down the female boxer. Thank you. So, in the field of education, gender discrimination should not be done. It depends on hard work and patience. Now, from class 5, Soha, Suhana and Rizwan Ali come up on the stage to perform Diniyat activity. Come fast. The name I am saying Soha, Suhana, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी मदीने में जब मदीने वालों ने ये खबर सुना कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर मदीने पर तशरीफ़ लाए हैं, तो सारे मदीने वाले मदीने से निकलकर हमारे नबी का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। मदीने के बच्चे गली गली घूमते और कहते हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पर तशरीफ़ ला रहे हैं, और सारे बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने की खुशी से छत पर चढ़कर असर पड़ती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पर पहुंच जाते तो सारे मदीने वाले मदीने से निकलकर हमारे नबी का बेसब्री से इस्तकबाल करते, और सब घर में यही जा रहा होता कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमारे घर में ठहरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियाँ चलते चलते अल्लाह के हुक्म से अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने ठहर गए, इसलिए हमारे नबी भी ठहर गए। थैंक यू। Class 5 of JP English Medium School, Unit of Central Jabir Educational Public Trust. Today, in this auspicious occasion, we want to recite a linear activity. Assalamu alaikum to everyone. I am Sona Parveen of Class 5. My school name is JP English Medium School, a unit of Central Jabir Educational Public Trust. क्या हाल, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? जी खैरियत से हूँ। चलो आपा दीन की बात करें। हाँ ज़रूर। मुनाफिकीन कौन लोग थे, उनका सरदार कौन था? मुनाफिकीन वो लोग था जो जाहिर में तो कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, लेकिन अंदर उन्हें तल पर वो इस्लाम और मुसलमान के सख्त मुखलिफ और बड़ा दुश्मन था। अब्दुल्ला उबैयन मुनाफिकीन इनका सरदार था।
इनका ये मुनाफिकीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार धोखा देने की कोशिश करते थे और इस्लाम और मुसलमान की ये साजिशें करना था। आपा हदीस तो पढ़ा ही होगा। हाँ ज़रूर। हदीस नंबर 17 क्या है? अब्दुआ सिलाउल मुमिनीन, तर्जुमा दुआ मोमिन का हथियार है। अब बताइए हदीस नंबर 14 क्या है? बस अब चुप रहिए, मैं भी तुमको सवाल करूँगी। जी जरूर। बोलिए इमाम मुफस्सिल कितने कलिमा बोलिए इमाम मुफस्सिल। अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इस्लाम में अरकान कितने चीज़ों पर है और कितने हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की अरकान 5 चीज़ पर है। नंबर एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना। नंबर 2 नमाज अदा करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 हज करना। नंबर 5 रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखना। गुस्ल का फ़र्ज़ तो पढ़ा ही होगा। जी जरूर। यहाँ पर सब बहन भाई हैं जो गुस्ल करते हैं लेकिन गुस्ल का फ़र्ज़ नहीं पता है, तो आप बोल दीजिए प्लीज़। गुस्ल का फ़राइज़ 3 है। नंबर 1 एक मरतबा मुँह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2 एक मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 एक मरतबा पूरे बदन पर ऐसा पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखी न रहे। जज़ाकल्लाह। Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nazmul. I study in class 5. The name of my school, Jept English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today in this special occasion of our school, 4th Winter Carnival, I want to recite a beautiful poem. The name of my poem, History of Talking Friends. Once there was a talking friends, electrical has chattered. I could not quite hear what he said, and I hope it does not matter, because one day somebody wailed, "He little Willie Motor," and all the misty was spoiled. He ran as still as water. Thank you. I will request to the team of Tabassum ma'am, Mustama. The drama team, Tabassum ma'am, please be ready. The drama team, Mustama, Tabassum ma'am. Assalamu alaikum. I am Murjina Khatun from class 5. The name of my school is Jept English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today in this special occasion of our school's 4th Winter Carnival, I want to recite a beautiful poem. The name of my poem is Learn to Share. There once was a greedy boy who didn't want to share his toys. When his friend came to play, he would hide his toys away. Soon his friend stayed away, and he felt lonely until one day he saw a lady thought was poor playing happily outside his door. His toys were broken, none were new, yet he seemed happy. Could this be true? Just then the lady saw the lonely boy and called, "Come and play, I will share my toy." Thank you. Audience, please clap your hand. Now from class 5, Soha, Sultana, Sohana and Fatima come up on the stage to deliver an English speech. Assalamu alaikum. Respected principal sir, vice principal ma'am, director sir and chairman sir, and my dear teachers, honorable chief guests and guests. I am Soha Parveen from class 5 of Jept English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today, in this special occasion, I want to deliver a short speech about our country, India. Our country, India, is the 7th largest country in the world. It has 28 states and 8 union territories. Many religious people, cultures, and languages are present in this country. India has many greatest men like Syed Ahmed Khan, APJ Abdul Kalam, Netaji Subhash Chandra Bose, etc. Ganga is the longest river and Kanchenjunga is the highest mountain in India. We love our country, India. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sultana Parveen from class 5. My school name is Jept English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Respected Principal Sir, Chairman Sir, Director Sir, Vice Principal Ma'am,
Honorable guest and teacher. Today I am deliver a short speech. The topic of my speech is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is my idol. As you know, in this world, every person has ideal personality. Like this, I also have an ideal personality, and idol too. I want to follow him and try to follow him. I am talking about our lovely holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In a hadith, Allah says to Hazrat Adam alaihi wasallam, if Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, not be created, you also not be created. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah, in the city of Saudi Arabia. His father name is Abdullah and his mother name is Bibi Amina. Thank you so much. देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये जो बच्चे अभी परफॉर्म करने आ रहे हैं, अभी जो ये बच्ची परफॉर्म की, इसका हमारे स्कूल पे एडमिशन लेने से तकरीबन 6-7 महीना ही हुआ है। देखिएगा, जो बच्चा जिस तरह से जितना दिन से पढ़ रहा है, कोई अगर 19 में एडमिशन लिया है, देखिएगा यहाँ पे कोई फंबल नहीं करेगा, फिर 20 में लिया है, 21 में लिया है, जैसे जैसे जो लोग आया है, हम लोग कोशिश करते हैं। ऐसा भी हुआ है, कुछ बच्चा 7 दिन पहले हम लोग के स्कूल पे एडमिशन लिया है, हम लोग उसको भी देखिए परफॉर्म करवा रहे हैं, ताकि वो लोग का हौसला थोड़ा बुलंद हो। इसलिए कोई दिल पे उस तरह का बात कोई नहीं लीजिएगा। जिस तरह का बच्चा जितना दिन से हम लोग के पास है, हम लोग उन लोगों को उस तरह से ही ट्रेंड कर रहे हैं। Assalamu alaikum, to very good morning to all of you. I am Suhana Parveen of class 5. My school name is Jeff English Medium School, a unit of Central Jabir Educational Public Trust. Today in this spacious or auspicious occasion, I want to recite a speech. Sisterhood in Islam. Islam teaches us that all Muslim women are bound together in a bond stronger than blood. The bond of faith in Allah says in the Quran, the believer were brother and sister, so make settlement between your brothers. And fear Allah that you many words. Surah Al-Hajj number 10. The verse emphasizes that our relationship as sister in Islam is built on love. We are like bricks in a walls, strengthening and protecting one another. Thank you. Audience, give a big round of applause for them. दौलतमंद की अजीजी जवानी की इबादत, दौलतमंद की अजीजी जवानी की इबादत, गुनहगार की तौबा, गरीब की सखावत अल्लाह को पसंद है. Now an English drama, Mustama, will be performed. Tawassum ma'am, please bring your all students upon the stage. Request Tabassum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuba and Bushra are sisters, and Tuba is the elder of the two. She studies in the British public school. She does not obey her parents nor listen to their orders and does not recite the Quran. Tuba's mother was searching for a school for a younger daughter, Bushra, which is a combination of both Islamic and academic subjects. Once she saw some girls wore hijab and observed Islamic etiquette. She was surprised and asked, Are you prepared for the competition? Yes, almost. Our teacher helping us to be prepared for the competition. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. You have memorized Hadith Anas radhiyallahu anhu narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said seeking knowledge is obligatory upon every Muslim as it is mentioned in Surah Ibn Majah. "Oh girls, where are you studying?" They study at the Jet English Medium School. MashaAllah,
These are my daughters and I am proud of them. Each one of them has memorized the many chapters of Quran and gave utmost importance towards for observing hijab and practice Islamic etiquette and offer their daily prayers at night and respect their parents. My daughter Tuba, I have admitted her to the British public school to educate in Islamic and all those things. But unfortunately, she does not even know any Islamic etiquette. But now I have decided to admit my younger daughter Bushra in the Jet English Medium School. May Allah make it easy for Bushra to secure an admission in the Jet English Medium School. Bushra got admission in the Jet English Medium School. She started to study there with interest and passion. After a few days, some guests came to her home. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome all of you. How are you all? Hi. Bushra, please hand over the cup to the Oh my dear sister, we must eat and drink in our right hand. It is an obligation to follow the way of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in everything, even eating and drinking. Because Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam commanded us that when you eat, you should eat with his right hand, and when one of you drink, you should drink with his right hand. Because Satan eat and drink with his left hand, as it mentioned in Sahih Muslim. Earlier we did not care about the Islamic etiquette in eating and drinking. Thanks a lot, my child. May Allah bless you. If you mention to us some other Islamic etiquette and practice in our lives. Okay, Auntie, we must enjoy what is good and forbid what is wrong, and we must give our neighbors their right, respect them, and adopt a good character and speak what is good. Thank you so much for giving us this very important knowledge about Islam. Where do you study, my child? I study at the Jet English Medium School. Alhamdulillah, MashaAllah, blessed is Allah. My daughter Bushra, she is the one who has changed the environment of our house and reforms all the family members and helped me in most of my household chores. Alhamdulillah, I am extremely happy, and the credit for all this after the grace of Allah goes to the exalted great known they who have established the Islamic school to educate the Muslim generation in Islamic education. May Allah reward him the best. When the guests were about to leave, Tuba's mother called out to her to meet the guests, but she was busy playing, hence she did not hear her mother. Wait a minute. Tuba, where are you, my child? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Wait a minute, Tuba. Where are you going? I am going to play with my friends. My friends are waiting for me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, my sister, we must respect and honor our parents. Do not even say oof to them, as Allah says in Surah Al-Isra, and your Lord has decreed that you don't worship except Him. And to parents, good treatment, don't repel them, but speak to them a noble word. Oh, my dear sister, the mother has been honored and treated with good manners.
I'm extremely sorry, Ammi. No problem, Tuba. Come, let us offer the prayer, because prayer on its prescribed time is the best of deed. Narrated Ibn Umar Raziallahu Ta'ala that I asked Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which deed is the most lovable deed in the sight of Allah? He Sallallahu Alaihi Wasallam replied, prayer on its prescribed time. I asked then what? He Sallallahu Alaihi Wasallam replied, good behavior with parents. I asked then what? He Sallallahu Alaihi Wasallam replied, jihad, struggling in the way of Allah, as it mentioned in Sahih Bukhari. Today, I have understood the importance of offering salah on time. Thank you, my sister Busra. May Allah grant you His blessing, inshallah. Invite in Allah's path, great reward you will receive. He provides you from sources you couldn't even conceive. The future belongs to you as Allah promises to. May Allah bless all the parents and their child with great akhlaq. Ameen. Jazakallahu khair. रेजा अमन अहन नफी मुंतजिर रिज्क सबनम नौसिन शहबाज अनमता मासूद रेजा अमन अहन नफी मुंतजिर रिज्क come near the stage. I will call only one time your name, otherwise the program will be skipped. Assalamu alaikum. Thank you for this generous introduction, Sayyid Rahman. It is so good to be here. Honorable Chairman, sir, Director, sir, esteemed guest, my leaders, Principal, sir, Vice Principal, ma'am, and the brilliant minds of JET. I'm so honored to be here. You know, while I was sitting there, I always push my students, why don't you go up on the stage? Why don't you go up on the stage? Today I realize it's really difficult. I'm sorry I did that to you. I would like to start by congratulating all the Jeftians. You are the future. You are our pride. You fill our hearts with love and joy. Every morning I wake up with a smile. Everybody asks, don't you feel tired? How can every day be same for you? I just answer them, because I wake up to see my students. Nothing but they bring back my time. How I used to do, how I used to perform in my school during annual days. Thank you so much for bringing those days back. I want to say a few words to those who are preparing for the board exams. You know, if you scored goods in your pre-boards, prepare yourself good. If you lived up to expectations, work harder. Now is the time and the opportunity that you will grow. You can correct yourself, you can rebuild yourself. This is the time. I miss my time, you know. Now when I do some mistake, it's not applicable. We have to do the right things. We try our best to do the right things. But as humans, we often do mistakes. But now is the most privileged time that you rebuild yourself and correct yourself. Keep shining. But to keep yourself shining, there are two things I want to discuss. First thing, embrace change. Change is the only constant. As we know, wherever we go, we face changes, right? Some days we'll go to new school, we go to new colleges, we go to new places. It becomes difficult for us to adjust. But trust me, this is life. As we teachers and parents are always there to help you. Time changed, and so did the rules and regulations for life changed. You know, previously, I would like to give an example. I was just fidgeting the phone, okay? I found a teacher, my professor, saying, previously, the cows were brought near the pond and asked to drink water. They were forced. But these days, they are brought near the pond and told, if you want to drink, they just tied over there. You know, you drink it or you don't drink it, that's your choice. So together, we can bring change. And one more thing I want to say, every day before going to bed, ask yourself,
Have you changed yourself for the better? If yes, good. If not, work hard on yourself, and we as teachers are always there beside you. Secondly, I want to quote Dr. APJ Abdul Kalam sir. He said, "The best brains of the nations may be found on the last bench of the classroom." I really feel good when I say this quote because I myself was a last bencher and I'm yet a last bencher. I said this quote to highlight no students are bad. Every students have their own qualities. Every students are special. Every child has their own ability. Every child has their own track to run. Every child is destined to be something or the other. Everybody can't be doctors. Everybody can't be engineers. I want to share something very mesmerizing. The first day I JEFT or second day I JEFT came to JEFT, I was sent to class 3 to attend a proxy class, substitute class. So just to spend some time with the little ones, I asked, "What do you want to be?" One of them said doctor, one of them said engineer, and the other one said, "I want to be a farmer." I said, "Why do you want to be a farmer?" He said, "Ma'am, that interests me, that is different. Everybody wants to be a doctor, everybody wants to be an engineer. I want to do farming, I want to feed the poor, rich people. That is my aim." I was super proud, you know. Now I see, when I was a child, my parents taught me, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তুমি কি হবে, তুমি বলবে তুমি ডাক্তার হবে, তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে। Now, you know, the students are choosing their own path. It's so good they're changing. It's so wonderful to see. They have their opinions, they have their choices. And we as teachers and parents think we should help them in giving. We should give them a chance to say their words, to choose their path. Do not force them. Please do not force them to go out of their limit and do something. Together we can help them grow. Together we can help them bloom. You know, they're flowers, they're trees. We can nurture them. We can bring them up. We can flourish them with happiness. It's not only freedom, like, you know, these days we're free enough. But it's not only freedom. They need light. They need love. They need help. They need support. They need everything to grow. And I think we all are doing that to our best. Thank you. This way I'm going to end my speech. The program is going to go long. Thank you for listening to me with all your patience. I beg your pardon if I go wrong somewhere. Have a great and a wonderful evening ahead. Thank you so much for listening to me with all your patience. Audience, please. From class 5 of JEFT English Medium School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसी हो अपी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी हूँ बहन। बहन, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। क्या हम दोनों दिन की बात करें? जी, मुझे तो इतना पता नहीं, पर कोशिश करूँगी। तो बताओ, हम सब पानी पीते हैं, मगर पानी पीने की बात की दुआ नहीं पढ़ते हैं। क्या इनके बारे में आपको पता है? जी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकाना अज़बन कुरातन बिरहमती वलम यजअलहु उजाजन बिजुनबिना। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ अल्लाह का है जिसने हमें अपनी रहमत से ये मीठे पानी पिलाई और हमारे गुनाह के वज़ाई से खरे और कड़वा नहीं बनाए। क्या आपको घर में दाखिल होने की दुआ पता है? जी पता है, क्योंकि हम तो घर में दाखिल होने के वक्त ये दुआ पढ़ते हैं, इज़ा दखलतु बैतन फसल्लिमू अला अली। तर्जुमा, जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। क्या मैं आपको और कुछ सवाल कर सकती हूँ? क्यों नहीं? तो बताओ, हमारे माए और बहनें बैठे हैं, इनका मकाम क्या है? क्या इनके बारे में हदीस में कुछ है? जी है ना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। तर्जुमा, जन्नत माओं की कदमों के नीचे है। क्या मैं आपको एक सवाल कर सकती हूँ? जी जरूर कर सकते हैं। कैदियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला को क्या हुक्म फरमाई और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर किस तरह अमल किया? क्या आपको पता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के इकराम रज़ी अल्लाह ताला को कैदियों का आराम का ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ अच्छे सलूक किया जाए। चुनांचे सहाबा के इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम रज़ी अल्लाह ताला की हुक्म पर सख्ती से अमल किया और वो अपने खाना कैदियों को खिला देते थे और खुद खजूर खा लेते थे। क्या आपको मैं और एक सवाल कर सकती हूँ? जी जरूर।
क्या आपको कपड़े पहनने की दुआ याद है? जी है ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हसाना हादा सौबा वरज़क़नी मिन गौरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वति। मैं आपको कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी जरूर कर सकते हैं। गाज़ाए बदर में मुसलमान और कूफा की तादाद कितनी थी? गाज़ाए बदर में मुसलमान सिर्फ 313 थे। जज़ाकल्लाहु खैर। अहलन व सहलन। Audience, please give a big round of applause for them. आप आए हैं तो बहारों ने लुटाया खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाया खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आए खुशबू। So Japanese, once again give a big round of applause for guests for being present over here. Now from class 5, Sahabaj, Anamta and Masood Raja come upon the stage to perform English recitation. आतिका खातून आपके घर के आपको कोई खोज रहे हैं आपको, आप प्लीज जहाँ कहीं भी रहे, जो एग्जिट गेट है गेट में आ जाइए। आतिका खातून। I would like to announce one announcement for the students those who are in the hostel. मुख्तार सर, आरिफ सर, कोई बच्चा अगर अभी हॉस्टल में रहे उन लोग को वहीं पे नील डाउन कर दीजिएगा। मैं ये आपको बोल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? कोई बच्चा हॉस्टल के अंदर नहीं रहेगा। प्रोग्राम हो रहा है ग्राउंड पे, वो लोग हॉस्टल पे क्या कर रहा है, वो लोग एकदम उस गेट के सामने नील डाउन करिएगा वो लोग को। Those who are inside the hostel, only for the costume they can go to change the dress. Except they will stay in the ground only. One more announcement is that the students, those who are appearing for the board exam, see, I will request to all the students, please be in the ground for the entire day because we have to honor you also. So I will request to all the students, those who will give the board exam in the year 2025, I will request to you, please be with us, enjoy the program. We have to honor you also, okay? And the students, those who are passed out, those who have passed out from our school, if they are in the ground, we have to honor them also. So please be in the ground and be with us. Please, sir. आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सहवाज सरकार है, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमारे जेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के सामने एक कविता पेश करना चाहता हूँ। मेरी कविता का नाम है सुमन एक उपवान के। हम सब सुमन एक उपवान के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक सी धूप हमें है। सिंचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झुल झुल कर, पलने में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवान के। एक हमारा सूरज जिसकी किरणें ऊर की कलियां खिलाती, एक हमारे चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। धन्यवाद। Assalamu alaikum. I am from class 5. My school name is Jet English Medium School. My poem name is The Elf Singing. An elf sat on a tree. He was not very big. He sang a little song. He did not sing, but he was on a wizard's ground, who hated all sweet sound. Elf, elf, take care of yourself. He is coming behind you to seize you and bind you, and stifle your song. The wizard, his chain he shaped, imploring along, and ugly old name a poison lizard. Audience, please clap your hands. Audience, are you enjoying the program? Yes or no? If you are enjoying the program, then please clap your hands. Now from class 5, Ahan, Aman Farhan and Muntajid Alviz come on the stage to perform the speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Aman Ali from class 5 and today in this 4th Wonder Gala, I want to deliver a short speech about the value of time. Time has great importance in a human life. The person who understands the important time in life is constantly moving toward progress. The value of time is more than money. Once lost can be regained sooner or later, but time once lost is lost forever. Time never discrimination between rich and poor. Both have an equal time.
It depends upon who use it properly. It is so powerful that it can make a person a king from a beggar. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ahanati. I am reading class 5. My school name is Jept English Medium School, a unit of Chanchal Jabi Educational Public Trust. Now, I would like to tell some beautiful speech about the importance of Islam. Islam is the best religion all over the world. Islam is the symbol of peace, honesty and calm. Islam wants us to accept all good things and reject all bad things. It is total faith on Allah subhanahu wa ta'ala and His best prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala and His mercy. Holy Quran is the main book of our Islam religion. There are many Sahih hadiths like Bukhari Sahih, Muslim Sahih, Tirmidhi Sahih, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Nasai. Every Muslim follows their prophets and his rule. All Muslims perform Salat 5 times every day. I am proud of my Islam and I am proud of my religion. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Chairman Sir, Director Sir, Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Guardians, guests, teachers and my dear friends. I am Muntazir Rahman from class 5. Today I am gathered here to celebrate our 4th Winter Carnival to deliver a short speech. Topic name is Muslims believe that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslims believe that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's true servant and final messenger. He is both a liar and an impostor. Among all Allah creations, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most superior. He was sent down as a messenger for the whole of mankind and jinns. Before him, all the messengers were also truthful. However, only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is to be followed until the last day. While Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was awake one night, Allah took him from Makkah to Baitul Muqaddas and from there to the 7 heavens and to the supports which Allah himself liked. He thought both Paris and hill. This event is known as the Miraj. We believe in this event as it happened. Allah enabled Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to do things that are impossible for others. These are known as the miracles. Others messengers were granted miracles. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam favors to the Muslims and the whole of mankind and numerous. He faced hardship for our sake. It is there for binding on every Muslim to have love and respect for him. Whenever his name is mentioned, we should recite the Durud. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Riz Alvi. I read in class 5. My school name is Jept English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Now I would like to tell some about beautiful speech, importance of our mother. Only orphan boy or girl feels pain of the absence of their parents. Nobody in the world can tell the whole contribution of their parents. Our mom always helps us from morning to night like shadow. She is umbrella which protects us from hot in summer and rain in monsoon. Most of the time we are angry to our beautiful parents. But it is our bad practice. In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala commands, nobody will angry to our beautiful parents. I love my mother, I respect my mother. Oh Allah, you give a big paradise my mother and father also. Thank you everyone, thank you so much. आप लोग हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो बच्चे का दिल थोड़ा मुरझा जा रहा है जब इस Assalamu alaikum to everyone. My name is Akif Hussain. I read in class 5. My school name is Jept English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today in this special occasion, I want to deliver a short speech. The speech name is the Holy Quran. It is the Holy Quran, the alive book. The only thing that does not let the Ummah die is the Holy Quran. The Holy Quran has remade the Ummah is the Holy Quran. The Holy Quran is the. Thank you. Audience, please clap your hands. हमने देखा है फिक्रे मुस्तकबिल में अनजान राहों पर भटकते लोगों को. हमने देखा है फिक्रे मुस्तकबिल अनजान राहों पर भटकते लोगों को. सब उम्मीदों के घरों में खोजना बड़ा एरस्त जागते देखा है.
Now an action song, Mercy Like Rain is Falling Down, will be held. Sanana madam, please bring your all students upon the stage. मैं तमाम गार्जियन से थोड़ा गुजारिश करूंगा जो बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, अभी एक एक्शन सॉन्ग होगा, उसके बाद ही हमारे प्रिंसिपल साहब कुछ स्पीच देंगे हमारे ही बारे में। प्लीज़ अब जहाँ कहीं भी रहे आप लोग बाहर जो भी घूम रहे हैं, प्लीज़ स्टेज पे आ जाए सामने, बहुत जगह खाली है, अभी इधर उधर ना घूमे। जो भाई इधर उधर घूम रहे हैं, जो हमारे गार्जियन बाहर घूम रहे हैं, प्लीज़ वो अंदर आ जाए। अंदर अभी भी बहुत जगह खाली है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग अंदर आ जाए। Safiqul sir, please come here. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Allah. Mercy like the angels in the rain. Mercy like the sun, the moon, the stars. Blossoming flowers, bearing fruits, showing us the greatness of Allah. Blossoming flowers, bearing fruits, showing us the greatness of Allah, of Allah. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the faith that shines within us. Mercy like the prayers that Allah answers. Mercy like the faith that shines within us. Mercy like the prayers that Allah answers. How it gives purpose to our lives, helping us strive for paradise. How it gives purpose to our lives, helping us strive for paradise, paradise. Mercy like the rain is falling down. Rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the smile for one another. Mercy like the kindness for each other. Mercy like the smile for one another. Mercy like the kindness for each other. Oh, how it takes sadness from our hearts, spreading God's love throughout the world. Oh, how it takes sadness from our hearts, spreading God's love throughout the world, spreading love. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down. Allah, 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 Ya Allah.
फैजान असीदुर, Please clap your hands. फैजान असीदुर, रिजवान अली, जीशान सरताज, मुमतहिना असीदुर, मिनहाज नौसिन, बी रेडी. फैजान असीदुर, रिजवान अली, जीशान सरताज, मुमतहिना असीदुर, मिनहाज नौसिन, बी रेडी. मैं अभी अपने स्पीच के लिए मैं अपना प्रिंसिपल सर को दावत देता हूँ, वो आए और अपना इमोशनल और अपना जज्बात व जद्दोजहद रंगो रंगर नंगोली, या अल्लाह ऐसे इंसान को हमारे ऊपर तादेर साया रहे. मैं इस शायर के साथ दावत देता हूँ, चलाओ तीर जो तेरे बेहतर कमान में है, चलाओ तीर जो तेरे बेहतर कमान में है, हजारों दिल कतरते हैं आपकी जुबान पे है. हेलो. सी द स्टूडेंट्स दोज आर हैविंग मोबाइल फोन. देखिए, मैं गार्जियन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग बच्चे लोगों को अपना फोन दे रहे हैं, आपको पता नहीं उस फोन की वजह से वो लोग क्या क्या कर सकता है. अभी सोशल मीडिया बहुत ही खराब हो चुका है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से, आप लोग अपने बच्चे को कोई भी प्लीज फोन ना दे. इसका वजह यह है, आज का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके लिए हम लोग कैमरा टीम को रखे हैं. 2 दिन के बाद ही आप लोग को सारा प्रोग्राम यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आगे आके पीछे जाके कुछ फायदा नहीं है फोटो लेके आप लोगों का. अच्छा फुल व्यू आपको क्लियरली मिल जाएगा. हर साल का प्रोग्राम हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं. नाउ आई एम मूविंग टू माय स्पीच. Assalamu alaikum to respected chairman sir, director sir, vice principal ma'am, chief guest, special guest, teachers, parents and my beloved students. Today we have gathered here to celebrate our 4th winter carnival, Islah-e Muashara, and on behalf of JEPT English Medium School, we are very thankful to you that you have given your important time to us. You have came here for these valuable words. Today you can see the students, they are performing here. They are showing their talents to you. By seeing their performance, you can understand how much talents they are having. Coming on the stage and to deliver anything or to perform anything, it's very tough. So I think for our teachers, it's a kind of big achievement for us. So I will request everyone to clap your hands for our teachers. Because of them only the students, they are coming here and they are performing. I want to say to all the guardians, those who are sitting here, these teachers to make this program success. From last 10 days, you can say 24/7, 12 hours they are doing hard work to make this program success. I think you can see the gallery right now. It's near about more than 2,000 audience are sitting here. More than 2,000 audience. Alhamdulillah, we are very grateful to you that you have came here and you have given us your important time. I want to say to all the parents, see I am moving directly in Hindi. देखिए, मैं आप लोगों को सीधा, सब कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई बांग्ला में बोल रहा है. मेरा हिंदी थोड़ा हिंदी जबान में ज़्यादा अच्छा है. मैं थोड़ा हिंदी अच्छा बोलता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को हिंदी में बोल रहा हूँ. जो टीचर्स हमारे स्कूल में हैं, आपको पता नहीं होगा शायद. देखिए, मैं बस 15 से 20 मिनट लूँगा, इसलिए लूँगा जो आप लोग अपना वक्त गवाते हुए यहाँ पे पहुँचे, अपने बच्चे को हमारे स्कूल पे डालें. आप लोग का एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि ये लोग कुछ कर सकता है. एक तो आप लोग प्रोग्राम देख के समझ ही रहे होंगे जो हम लोग बच्चे को किस तरह तैयार किए हैं. तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो टीचर्स हम लोग के स्कूल में काम करते हैं, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जितने भी स्कूल है, सारे स्कूल का मैं आपको बोल रहा हूँ. सारा स्कूल, कोई एक स्कूल नहीं, मैं आपको सारा स्कूल का बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे स्कूल से मेरा अच्छा कांटेक्ट है. हम लोगों को हर एक स्कूल से कांटेक्ट रखना पड़ता है. तो मैं आपको एक चीज गारंटी बोल सकता हूँ, हमारे पास जो स्टाफ है, अभी हम लोग के पास 36 टीचिंग स्टाफ है. टीचिंग स्टाफ 36 जो टीचर हमारे स्कूल में काम करते हैं, इसमें कम से कम आधा टीचर साइंस बैकग्राउंड से है. ये आपको शायद पता नहीं है. दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा,
मैं डायरेक्टली आ रहा हूं अब पढ़ाई के बारे में। लोअर सेक्शन में हम लोग हर एक लोअर सेक्शन में फीमेल टीचर रखे हैं, और जो टीचर वो बच्चे को तालीम देती है, उनके खुद के बच्चे अभी अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हमारे स्कूल के ही स्टूडेंट हैं। देखिए, बहुत दुख की बात यह है, जो हम लोग का स्कूल पे 700 बच्चा तो है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शायद पता नहीं है, हम लोग का एडमिशन नॉर्मली फरवरी या तो मार्च से स्टार्ट होता है हर साल, क्योंकि हम लोग का सेशन होता है अप्रैल टू मार्च। तो मैं ये आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि एक हम लोग शायद ऐसा स्कूल होंगे जो हम लोग का एडमिशन अभी बंद होने वाला है। पेरेंट्स लोग एडवांस आके सबको एडमिशन करवा दिए हैं। बाकी जितने भी स्कूल होंगे शायद उन लोग का एडमिशन अभी ओपन होगा, लेकिन हम लोग के पास शायद 10% सीट होगा अभी खाली है। हम लोग हर साल 150-200 बच्चा एडमिशन लेते हैं। अब सोचिए, अभी सेशन आया ही नहीं है, फरवरी में या मार्च में एडमिशन होता है बाकी स्कूलों में, हमारे स्कूल में एडमिशन अभी क्लोज होने वाला है। तो कोई पेरेंट्स जो यहाँ पे आ रहा है, प्रोग्राम देख रहा है, आप चांचल का पूरा एरिया, चांचल हो, हरिश्चंद्रपुर हो, इटार हो, आप कहीं भी जाइए, जाके देखिएगा हमारे स्कूल का एक भी बैनर कहीं पे नहीं होगा। नहीं कभी हमारे स्कूल का कोई माइकिंग होता है, अनाउंसमेंट कि आसेन बच्चा के भर्ती कराना उधर स्कूल है। हम लोगों ने 2019 में अपना स्कूल स्टार्ट किया, बस उस साल ही हम, जिमी सर और एक सर थे जो अभी स्कूल पे नहीं है, उनको अच्छा काम मिल गया है। हम लोग 3-4 टीचर मिलके हम लोग बैनर माइकिंग बस 19 में ही किए हैं। उसके बाद से अल्लाह का रहम व करम है, जो अभी तक हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता है। आप ही लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स को बोलते हैं आओ और बच्चे को दाखिला कराओ। तो मैं आप लोग को ये चीज, ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग कोई बहुत महान नहीं है, ये बात बताना बहुत जरूरी है। दुख देखिए कहाँ पे होता है, हमारे पास क्लास 10 तक के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हम लोग के बच्चे 2024 में जो बोर्ड एग्जाम दिया था, उसमें 16 बच्चा बोर्ड एग्जाम में बैठा था। 16 में से 15 बच्चा क्वालिफाई कर गया था, एक बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया था। वो बच्चा लेकिन हमारे स्कूल में क्लास 9 में आया था। हम लोग उसको एडमिशन नहीं ले रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, इंशाल्लाह वो इस बार क्वालिफाई कर जाएगा। इस बार देखिए, वो जो 16 बच्चा हम लोग के बोर्ड में 79% हाईएस्ट आया था, उस 16 बच्चे में जो बच्चा अभी इस ग्राउंड में है, अभी आया है, हम लोगों ने उसको भी इनवाइट किया है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब ये बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे थे, तब उस क्लास में 16 नहीं, कम से कम 22-23 बच्चे थे। लेकिन जब वो 9th में गए, वो हो गया 16, फिर 10th में भी 16, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो गया है। अभी देखिए, जो 5-6 बच्चा हम लोग का स्कूल छोड़ के आलमीन मिशन हो या कोई भी मिशन में गया, वो उसका पर्सनल मैटर है। 8 तक हम लोग उनको पढ़ाए, हमारे बच्चे का रिजल्ट टॉप आया 79। जो बच्चा हमारे पास पढ़ा वो आलमीन मिशन में जाके भी टॉप कर रहा है। अभी भी जो बच्चा पढ़ रहा है आलमीन मिशन में, हर एक क्लास में आप जाइए, मालदा में एक ब्रांच है, आपका सिलीगुड़ी में भी एक ब्रांच है, आप जाके पता करिए कि जब से यहाँ कोई बच्चा आया है, मैं ये उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि हमारे जितने बच्चे भी वहां पे गए वो टॉपर्स हैं। अब आपको बता रहा हूं, जो 10th का बच्चा जो पास किया, जो 5-6 बच्चा आलमीन में जाके पास किया, उसमें से किसी का 90 आया, किसी का 92 आया, किसी का 93 आया। देखिए क्लास में क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बच्चा छोड़ दिया हमारा स्कूल क्लास 8 के बाद, रह गया 7th और 8th। तो 7th, 8th, 9th, 10th पोजीशन करने वाला 79-80% ला रहा है। अगर वो बच्चा हमारे पास रहता तो आपको नहीं लगता है कि वो 95 के जवाब लाता? आप एक बार सोच के देखिए। इस साल भी हमारे पास 10th में तकरीबन 24 बच्चे हैं, और मैं ये आपको इंशाल्लाह गारंटी ये बोल सकता हूं, उसमें से कम भी 4-5 बच्चे हैं, कम से कम 3 बच्चे तो गारंटी है जो 90 के ऊपर परसेंटेज लाएगा। वो कौन बच्चे हैं जो हमारे पास 3-4 से पढ़ रहे हैं? ये बात को थोड़ा समझिएगा। ये समझने वाली बात इसलिए है, पेरेंट्स को लगता है कि आलमीन मिशन या कोई भी मिशन हो, वहां पे भेजेंगे बच्चे को तो बच्चा मेरा दुरुस्त हो जाएगा। हमारे पास 36 स्टाफ है जो काम कर रहा है हमारे स्कूल में। हर एक स्टाफ हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेंड है, जो हम लोग के डायरेक्टर साहब ने आपको बताया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग के पास तो आप उम्मीद पे लेके आते हैं, लेकिन 8 के बाद फिर आलमीन में बैठाते हैं। अगर आलमीन में है उतना गट्स तो उनको बोलिए कि ये अच्छे बच्चों को लेना बंद कर दे। जो हम लोग के पास वीक बच्चे हैं
उनको लेके जाए और उनको लेके पढ़ाए। देखिए फिर कितना तकलीफ होता है तैयारी करने में। मेरा उनसे कोई नाराजगी नहीं है, ये उनका अपना सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मुस्लिम समाज को अल-अमीन मिशन नूरुल साहब ने हम लोगों को इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, तहे दिल से हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वहां पे क्यों जा रहा है, मेरा बात को समझिएगा। उन्होंने हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उन लोगों से हम लोग मोटिवेट होकर हम लोग स्कूल चलाते हैं। वो लोग हम लोग के गुरु हैं, हम लोग उनके शिष्य हैं। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि अगर वो बच्चा इसी तरह हर साल 8 में या 9 में अगर अल-अमीन में जाए तो बताइए जेप्ट कब लाएगा 90%? ला पाएगा क्या? अगर हर एक टॉपर्स बच्चा, यहाँ पे एक गार्जियन बैठे हुए अनसुर रहमान सर, वो एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, अभी टीआईसी पद में भी है, उनकी बेटी है सिमरन। आप उनसे पूछिए उनकी बेटी कितनी अच्छी पढ़ाई में, मुझे उम्मीद है वो 95% के ऊपर जरूर लाएगी। रीफा बैठी हुई है, जरूर लाएगी। तो उन्होंने वो भी अगर चाहते हैं तो अपने बच्चे को भेज सकते थे, लेकिन हम लोग के ऊपर वो उम्मीद करते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोअर सेक्शन का बात नहीं है, ये जेप्ट अभी लोअर सेक्शन वाला स्कूल है ही नहीं। अगर बच्चा 9-10 में इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, आप बेस तो यहाँ पे ठीक कर ले रहे हैं, मेन टाइम में स्कूल छोड़ दे रहे हैं। ये बहुत तकलीफ की बात है, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। इस बार भी एक बच्चा है अरमान बोल के, वो अल-अमीन में पढ़ रहा है, इस बार क्लास 10 में। आप जाके पता कीजिए, वो भी टॉपर से वहां का। अब वो बच्चा अगर 96% लाएगा तो आप बोलिएगा वो तो अल-अमीन से पढ़ा है। अल-अमीन 2 साल में उसको सब ठीक कर दिया। आप बताइए, खुद आप एक बार सोचिए, या कोई भी स्कूल हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अल-अमीन मिशन खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों से लाख गुना अच्छा स्कूल है, लेकिन हम लोग भी उनसे खराब नहीं है। सिर्फ अल-अमीन नहीं, ऐसा उषा मार्टिन है और होली एंजल से बहुत सारा स्कूल है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर अच्छे लोगों उन लोग को ही खाली मौका मिलेगा तो हम लोग को कब मिलेगा। अब रहा दूसरा बात, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं बोर्ड एग्जाम का लेके। देखिए ये जरूरी है, ये हायर सेक्शन का प्रोग्राम है। हम लोगों ने अपना सेंटर करवाया है। हम लोग जो जिस स्कूल के अंडर में है वो आजम नगर बारसोई में पड़ता है। आपको एक बात बता देते हैं, हरिश्चंद्रपुर थाना में और चांचल थाना में एकमात्र हम लोग ही स्कूल है जो बच्चे को क्लास 10 करवाते हैं बल्क में, बहुत ज्यादा नंबर में। बाकी अगर कोई स्कूल होगा तो 1 बच्चा या 2 बच्चा होगा उस स्कूल में। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, हम लोग और उन स्कूल का नाम है वो आजम नगर बारसोई में वो स्कूल है। वहाँ के जो ऑनर है उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। बहुत गार्जियन के ऐसा मन में ख्याल है कि ये तो बिहार से करवा रहा है। बात को समझिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड। ये बात को समझिए। स्टेट मीन्स जो बच्चा बिहार बोर्ड से परीक्षा दे रहा है वो लोग हो गया बिहार बोर्ड का। जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड हाई स्कूल होता है या कोई प्राइमरी लेवल, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड। इसी तरह एक सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये बात समझिए, ये बोर्ड ऑल ओवर इंडिया पे है, हर एक जगह पे है। हर एक जगह पे इनका अपना अपना स्कूल बनाया हुआ है, जिन लोगों को एफिलिएशन मिल चुका है। हम लोग भी उस प्रोसेस में है। अगर वो बच्चा उस स्कूल से एग्जाम दे रहा है, वो बच्चा का सेंटर पड़ता है कर्नल एकेडमी स्कूल में जो है कटिहार। इस साल जो बच्चा माध्यमिक एग्जाम देगा या लास्ट ईयर जो दिया था, वो लोग का सेंटर पड़ा था कर्नल एकेडमी में। आपको शायद पता नहीं है, वो बिहार का रैंक्ड स्कूल है, बिहार का, जिसमें इन लोगों का सेंटर पड़ता है। वहां पे एक बार जाके जो लोग एग्जाम दिया था उन लोगों से पूछिएगा कि कितना वहां पे टफ सिस्टम होता है। अभी बिहार वो बिहार नहीं रहा, और रहा बात बिहार बोर्ड का, हम लोग बिहार बोर्ड से बिलोंग करते ही नहीं है। और अभी बिहार बोर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हम लोग का बोर्ड है सीबीएसई। जब बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा पटना रीजनल ऑफिस, उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा सेंटर नेम, स्कूल नेम, आवर ओन पब्लिक स्कूल कटिहार, इतना ही लिखा हुआ रहेगा। बाकी जो बच्चे होली से पढ़ते हैं या उषा मार्टिन में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, उन लोग का सर्टिफिकेट इनका सर्टिफिकेट मैच करिएगा और जो क्वालिफाइड पर्सन है उनको जाके दिखाइएगा कि सर बोलिए इसमें आप क्या कीजिएगा, किसको सिलेक्ट कीजिएगा, किसको नहीं कीजिएगा। मुझे ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ, इतने तादाद में यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, मैं ये आपको गारंटी बोल सकता हूँ, किसी का गट्स नहीं है कि उसमें कुछ बोलेगा ये गलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप लोग जिस भरोसे से बच्चे को हम लोग के पास भेजे हैं, क्लास 10 तक बच्चे को यहाँ पे पढ़ाइए। और हम लोग कोशिश में है कि 11-12 भी स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट थिंग आई विल से अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने एलन का नाम सुना होगा। एलन एक मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल इंजीनियरिंग बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाता है। वेस्ट बंगाल में जो रीजनल हेड है उनका नाम है माधव सर। मैं उनसे डायरेक्ट बात करता हूं फोन में
वो मेरे स्कूल पे आए हैं। सर ने बताया कुछ देर पहले नॉर्थ मालदा का हम लोग को हेड किया गया है। कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, हम लोग ही सेंटर थे। आप जाके माधव सर से पूछिएगा कभी भी, सर आप जानते हैं, क्योंकि बहुत कोई का बच्चा हो सकता है कभी एलन में जाए, ये मेडिकल कोचिंग देता है, ये लोग का सिस्टम है बच्चे को मेडिकल के लिए तैयार करना। उनके तरफ से हम लोग के जब वो स्कूल पे आए थे, जब से हम मिले हैं, हमारे बच्चे जो क्लास 10 पास आउट कर चुके हैं, 3-4 बच्चे वहाँ पे अभी मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, वहीं पे रहते हैं। दुर्गापुर में सेंटर है उनका हर एक जगह पे सेंटर है। तो मैं आपको ये नाम इसलिए बोला, ये बच्चा वहाँ जाने के बाद वो टीचर, वहाँ का रीजनल हेड हमारे स्कूल में आया था, जस्ट कुछ दिन पहले वो आए थे। वो आके बोले आपके जितने भी बच्चे सर वहाँ पे गए हैं सारे बहुत अच्छे हैं, वो लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मेडिकल क्रैक भी कर जाएंगे। तो देखिए मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद एलन का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा गया था। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे खाली आप ये प्रोग्राम देख लिए चले गए तो नहीं होगा, ये जानना आप लोगों को जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चे को हमारे स्कूल पे दिया है। एलन का कुछ दिन पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया गया था जिसमें स्कॉलरशिप मिलता है। बहुत पेरेंट्स को शायद फोन भी गया होगा। मैं आपको ये गारंटी बता रहा हूँ, जो बच्चा एग्जाम में बैठा था, हम लोग का 80% बच्चा स्कॉलरशिप में क्वालिफाई किया था। 80% वो लोग की तरफ से। अगर आपका कभी भी मन करे क्लास 10 के बाद बच्चे को वहां भेजने के लिए, हमें आप कांटेक्ट कीजिएगा। अगर वो किसी का फीस 1 लाख लेता है, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, हम लोग के बच्चे का वो फीस लेगा 50,000 कंफर्म। रहा बात जितना भी स्कूल है यहाँ पे, जैसे उषा मार्टिन है, होली एंजल से कोई भी स्कूल है, आपको एक चीज शायद पता नहीं है, अभी एडमिशन सिस्टम हो गया है ऐसा, बच्चा अगर ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा उसका एडमिशन भी हो जाएगा कम। देखिए अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर जो बच्चा क्लास 10 कंप्लीट किया, मेरा खुद का भांजा, वो भी क्लास 10 पास किया है हमारे स्कूल से, उसको हम खुद गए उषा मार्टिन में एडमिशन कराने के लिए। उसके फादर से चार्ज किया गया 1 लाख रुपया। थिंक अबाउट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया का कितना बड़ा रकम होता है। हमारा स्कूल एडमिशन फी लेता है 10,000 या 8,000 या 9,000, उसमें भी हम लोगों को बोलता है कुछ लेस करिए सर। हमारा स्कूल का फीस है 500, 600, 700, 800। हॉस्टल फीस है 3,500, 4,000, 4,500, हाईएस्ट 5,000। ये हॉस्टल फीस आप सोच के देखिए, इसमें खाना, बच्चे को रखना, पढ़ाना, हम लोग सब कुछ इसी में करते हैं। आपके दिल में एक ख्याल आता होगा, मुझे ऐसा बहुत सारा गार्जियन ने बोला भी कि आप चार्ज बढ़ाते क्यों नहीं है। चार्ज बढ़ाइए और क्वालिटी को अच्छा कीजिए। देखिए हमारा स्कूल अभी एक छोटा कैंपस में है, हम आपको सर्विस उस तरह से दे पा रहे हैं। अपना जब कैंपस बनेगा, अपना जब क्वालिटी आस्ते आस्ते बढ़ेगा, तो ये आप समझ ही पा रहे हैं, वो फीस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जो इस स्कूल के चेयरमैन सर है, जो डायरेक्टर सर है, आप देखिए जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ, बस एक बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जब से हम लोगों ने ये स्कूल खोला, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, वो जो बताया कि सब सर ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का कोऑपरेशन है, उनका सपोर्ट है। कभी भी कुछ भी होता है, इतना बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा ना, इस पे कितना खर्च हुआ होगा, आ रहा होगा ना। बहुत सारा स्कूल है, लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, स्कूल का पैसा स्कूल में लगाओ, स्कूल का पैसा स्कूल में लगाओ, स्कूल में बरकत आएगी। 19 से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी 25 चल रहा है, ये हम लोग का 4th नंबर प्रोग्राम है। आपको यकीन नहीं होगा हम लोग के हिस्ट्री के बारे में। पहले मैं और जिमी सर एक स्कूल में काम करते थे, स्कूल का नाम है शम्सी अलाही मिशन, बहुत कोई शायद सुने भी होंगे। शम्सी अलाही मिशन एक इस्लामिक स्कूल है शम्सी में, उनके पास भी बहुत बच्चे अच्छा, वो भी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। एक है अल इकरा स्कूल, वो लोग का भी सेंटर पड़ता है कटिहार में, वो लोग का बच्चा भी वही और उनसे ही एग्जाम देता है। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, वो लोग भी रजिस्ट्रेशन वहीं से करवाता है। लेकिन देखिए सर्विस किसको बोलता है, हम लोग को जो डायरेक्टर सर है, चेयरमैन सर है, इनका हमेशा से एक बात है कि जितना कर पाओगे उतना ही बोलो, ज्यादा कभी मत बोलो। वो लोग इसी लाइन से आते हैं, हम लोग इसी तरह से चल रहे हैं। हम लोग जब लास्ट ईयर, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टर सर को, लास्ट ईयर हम लोग जब एग्जाम सेंटर में पहुंचे, एग्जाम देने गए, और बच्चा लोग जो गया, तो अलाही से अलीगढ़ से जितना भी बच्चा गया है एग्जाम देने के लिए, उसके गार्जियन को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग जो बच्चे को एग्जाम दिलाने लेके जाते हैं, हमारे साथ टीचर्स जाते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर रूम है जहाँ पे पूरा सेफ्टी रहता है, एहतियात रहता है। हम खुद वहाँ पे 1 महीना रहते हैं, हम लोग इतना कोशिश करते हैं, उसके बाद जाके बच्चे लोग को हम लोग प्रॉपरली एग्जाम सेंटर में भेज पाते हैं। तो मैं आपको ये सब चीज इसलिए बता रहा हूँ कि इतना सारा स्कूल है, आपने और भी बहुत सारा स्कूल देखा होगा। मैं ये आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, हमारे पास अगर 700 बच्चे भी है प्रेजेंट, आपको बता दो हम लोग का स्कूल का नंबर्स, बच्चा भी हम लोग के पास 700 है, 700 प्लस बच्चे हैं।
जिसमें 300 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाकी 400 बच्चे बाहर से आना करते हैं। हम लोग ही एकमात्र स्कूल होंगे जो 650 बच्चे को प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। रहा बात रिजल्ट का, देखिए रहा बात, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। रहा बात रिजल्ट का, हम लोग का रिजल्ट भी जो मिलता है, देखिएगा बच्चे को 30% भी मिलता है, बच्चे को 20% भी मिलता है एग्जाम में। हम लोग का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रिजल्ट में नंबर बढ़ा देंगे, आप खुश हो जाइएगा, आपको मिल गया 100 आउट ऑफ 100, ऐसा नहीं है। जो फेयर है हम लोग कोशिश करते हैं वही सब करने के लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सभी से, जो उम्मीद से, जो भरोसा से आप लोग बच्चे को हम लोग के पास भेज रहे हैं, हम लोग के पास रखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को जो प्लीज इसको थोड़ा बरकरार रखिएगा। हम लोग से कभी नाउम्मीद नहीं होइएगा। हम लोग जो आपको बता रहे हैं, जो हम लोग का सफर, मैं और सर के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि पहले हम और सर शमसी अलही मिशन में एज ए टीचर काम करते थे। वो थे वाइस प्रिंसिपल, मैं था टीचर, वो भी लोअर सेक्शन का। जो लोअर सेक्शन के टीचर है मैं उन लोगों को ज्यादा करके बोलूंगा। मैं भी उस जगह से उठ के मैडम इस जगह पे आया हूँ। इसके बाद फिर देखिए हम लोगों ने वो स्कूल किसी कारण छोड़ दिया, फिर आगे ऑलिव गार्डन में जो रानी कामात में एक स्कूल था, यहाँ पे रिफा की मम्मी बैठी है। रिफा अभी कुछ देर पहले वो बच्ची स्पीच दे रही थी। आप यकीन मानिए मेरा दिल एकदम, मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि हमारी बच्ची इतना अच्छा बोल रही है, हम लोग से भी अच्छा बोल रही है। देखिए मैं इसलिए इमोशनल हो गया था, इसलिए भावुक हो गया था कि वो बच्ची उस स्कूल में पढ़ती थी। हम लोग एक एनुअल प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए थे। हम लोग एक टेंट भी नहीं था, हम लोग एक तिरपाल होता है ना, तिरपाल, हम जिमी सर सब मिल के ग्राउंड में तिरपाल को बांध के एक माइक्रोफोन से एक प्रोग्राम को होस्ट किए थे। वो गार्जियन बोला था उसका फादर कि सर हमें आपसे उम्मीद है कि आप मेरे बच्चे को साइन अप जरूर कराइएगा। आज देखिए उनको वो रिजल्ट शायद मिल रहा होगा, आपने देखा भी। तो हम लोग का सफर, हम लोग बहुत ग्राउंड रूट से एकदम नीचे से इस जगह पे आए हैं। हम लोग का औकात मालूम है कि हम लोग क्या है। इसलिए मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग कभी ये चीज नहीं भूलते हैं। आज हमारे पास 700 बच्चा है, इसका मतलब हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने ही 700 बनाया है, आप ही चाहेंगे तो इसको फिर 0 कर देंगे। तो मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। देखिए मैं जो भी बात आपको बोल रहा हूँ ये मेरा इमोशंस है, ये हमारा स्कूल नहीं है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है। हम लोग आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज। अभी मेरे पेरेंट्स भी कुछ देर पहले आए, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी बेटी अभी जस्ट कुछ देर पहले पहुंचे। देखिए मैं ये बच्चे लोगों को ही बोलूंगा, सी द स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग टू एवरीवन, सी द पेरेंट्स, दे आर सिटिंग हियर, नो, दे आर सिटिंग विद देयर ड्रीम्स, डोंट ब्रेक देयर ड्रीम प्लीज। ये एक उम्मीद से तुम लोग को स्कूल पे भेजते हैं, ध्यान से पढ़ाई करो। ये लोग का एक सपना है, एक ड्रीम है, ताकि तुम लोग बड़े होकर कुछ बनो। आज शायद मेरे पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे तो उनको भी बहुत इमोशनल फील हो रहा होगा, इसलिए कि मेरे माँ बाप, मेरे फादर उतने पढ़े लिखे नहीं, आप लोगों को अच्छे से पता है, मैं बोलता हूँ बार बार। मेरी मम्मी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, मेरे अब्बू को तो लिखना भी नहीं आता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगेगा शायद कि इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये वो बहुत सारा लोकल ये वो बोलेगा। क्योंकि अभी एक नया चीज देख रहा हूँ हम लोग चांचल पे, जो बच्चा इंग्लिश से बांग्ला, बांग्ला से इंग्लिश चलता रहता है। लेकिन शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि क्लास 10 के बाद आप जहां कहीं भी जाए, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो इंजीनियरिंग हो, आपका लेकिन सिलेबस इंग्लिश नहीं होगा। अगर आपको ये पता नहीं है, आप एक बार पता कर लीजिएगा। जो बच्चा बंगाली मीडियम से जाता है डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन उसको पूछिए एक बार जो कितना तकलीफ होता है डॉक्टर बनने में उसको। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है उसके लिए सिस्टम बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और जो आप लोग के आसपास के लोग आपको जो भड़काते हैं कि क्या कर लोगे, यहाँ तो बस 10th तक है, 10th के बाद क्या करोगे। अरे बच्चा 10th के बाद बांग्ला मीडियम में भी जाके पढ़ सकता है, ये बात को समझिए। ये वर्जन अलग है, सिलेबस अलग है, हम लोग का बोर्ड अलग है। लेकिन अगर आप चाहे तो क्लास 10 के बाद अगर यहाँ पे पढ़ ले, 10th के बाद अगर आप उसको सीईपुर में या DIV हाई स्कूल में कहीं पे भी लेके जाइएगा, उसका एडमिशन वहां भी हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि यहाँ का बच्चा वहां पे जाके टॉप करेगा। नहीं तो आप जाके पता कर सकते हैं सितौलपुर हाई स्कूल में इस बार क्लास 10th के बाद कुछ बच्चा वहां पे जाके एडमिशन लिया, इसलिए कि उनके पेरेंट्स के पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ नहीं है जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज बोल के कुछ गार्जियन मुझे आके बोलता है कि सर इंग्लिश मीडियम कॉलेज फिर कहाँ है। अब देखिए उनको पता नहीं, उसको उनको किसी ने भड़काया होगा, समझाया होगा। बात समझिए, कॉलेज में प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, कॉलेज में हर एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट टीचर रहता है। वो बच्चा यहाँ से पढ़े जहाँ से पढ़े, आप उसको चाचल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, उसको आप मालदा कॉलेज में पढ़ा सकते हैं,
आपका जैसा आपका हैसियत है, बच्चे को आपको जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं आप पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि ये सब लेके उतना टेंशन मत करिए, बच्चे को आराम से पढ़ाइए। जितना दूर तक पढ़ाना है, अगर 5 तक पढ़ाना है, 10 तक पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है, उसके बाद भी वो जाके बांग्ला मीडियम में कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन जरूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए और इस्लामिक स्कूल में जरूर पढ़ाइए। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ऑल द गार्जियंस, ऑल द पेरेंट्स, दोज हु आर सिटिंग हियर। हर एक गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, इस्लामिक स्कूल में पढ़ाना है। जो भी स्कूल हो उस स्कूल में पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल द गार्जियन, दोज हु आर प्रेजेंट हियर। मैंने बहुत सारा वक्त आप लोगों का ले लिया, लेकिन यकीन मानिए मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ भावनाओं में बोल रहा हूँ, इमोशंस में बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, ये कोई बनाई हुई स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे दिल में जो आ रहा है मैं वही आप लोग को बयां कर रहा हूँ। तो बस जो उम्मीद से आप लोग बच्चे को यहाँ पे लेके आए हैं वो बरकरार रखिए, बच्चे को रखिए इंशाअल्लाह। देखिए हम जो थे हम भी ऐसे नहीं थे, हमको तराशा है डायरेक्टर सर ने, हमको उन्होंने हमेशा पुश किया है हर एक चीज के लिए, अब आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अगर वो हमें इस जगह ला सकते हैं तो उसके हाथ में, उनके हाथ में, हमारे हाथ में आपके बच्चे हैं। क्योंकि हम लोग का मकसद सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाना नहीं है, हमारा मकसद है कि हम एक अच्छा इंसान बनाए। वी शुड मेक ए गुड ह्यूमन बीइंग, कि वो जहां भी जाए सबको कुछ सीख सिखाए। सो आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, ऑल द पेरेंट्स, प्लीज जो भरोसा, जो उम्मीद जो आप लोग हम लोग दिखाते आ रहे हैं वो प्लीज बरकरार रखिए। हम लोग आप लोग कभी नाउम्मीद होने नहीं देंगे। Once again we are very thankful to you everyone. Thank you for your important time. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। अपने शागिर्दों को मंजिल का पता देता है, अपने शागिर्दों को मंजिल का पता देता है, ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। जानता खूब है ये सारा, जानता खूब है ये बात सारा जमाना, है जिब्ट ही जो पत्थर को जुबान देता है जिब्ट ही जो पत्थर को भी जुबान देता है। Audience, please clap for our principal sir. Thank you sir. Thank you so much. उषा मार्टिन में है, कुछ बच्चा आपका एलएन में कोचिंग ले रहा है, ठीक है। और एक चीज, जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आया था हम लोगों का, 16 बच्चे में से आई थिंक नियर अबाउट 14 सर, कितना बच्चा है, नियर अबाउट 16 बच्चे में 14 बच्चा ही साइंस लेके पढ़ाई कर रहा है। ये आप लोग को जानना जरूरी है थोड़ा। जो 16 बच्चा यहाँ से क्लास 10 कंप्लीट किया है उसमें से 14 बच्चा वो लोग साइंस लेके ही पढ़ाई कर रहा है। और जो बाकी जो बच्चे, देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, मैं आप लोग को बार बार बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो टीचर्स हैं इनके ऊपर प्लीज भरोसा रखिए, फेथ रखिए। इंशाअल्लाह हम लोग इन लोगों को फुल ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग को जो आता है हम लोग इन लोगों को भी सिखा रहे हैं, उन लोगों से भी हम लोग सीख रहे हैं। सो प्लीज ये ट्रस्ट, ये भरोसा बनाए रखिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। Once again, Asidul, come up on the stage to perform Diniyat activity. Assalamualaikum. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Rahman from class 5 in J English Medium School. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों की मुखालिफत देखकर ताइफ का सफर का इरादा फरमाया था। ताइफ अरब के एक कदीम शहर का नाम है जो मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 87 किलोमीटर दूर है। यहाँ कबीला बानू सकीफ के लोग आबाद थे। हुजूर को उम्मीद थी कि अगर ये कबीला इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो मुसलमानों को कुरैश के जुल्म सितम से आज़ादी मिल जाएगी। इसी उम्मीद पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के रेशों सरदारों को हक की दावत दी और अल्लाह ताला के पैगाम पहुँचाए। मगर अफसोस के उनमें से एक ने भी अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक की दावत को कबूल नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइंतहाई और बदअखलाकी से पेश आए और उसी पर बस नहीं किया बल्कि बजाय सही के लड़कों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहे और पत्थर मारे। वहाँ के लड़कों पत्थर मारते और मजाक उड़ाते ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाते और पत्थर मारते हैं। थैंक यू। Artaj, come up on the stage to perform English recitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected chairman sir, director sir, principal sir and vice principal ma'am, teacher and my friend. My name is Ridwan Ali from class 5 of J English Medium School, a unit of Chanchal Jabi Educational Public Trust. Today in this wonderful occasion I want to recite a poem. Poem name is My Beloved. My beloved, I learned of a man who struggled so hard. When his calling was from the start.
spoke gently and kindness in me. His conviction, his message was true. Touch of his hand was soft as silk to confront a crying child. Two men clothed or do the course, never complaining, he always smiled. So I love more than all creation, my leader, my humble prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा माजिद सर, आरिफ सर, मुख्तार सर, अरशद सर, थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज। मुख्तार सर, अरशद सर, माजिद सर, टिफिन देने के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टिफिन देना। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाइए, क्लास 10 का हेल्प लीजिए और देना स्टार्ट कीजिए जिस तरह कल किए थे।